Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Bio Canvas. Today we are going to discuss about taxonomical aids. पिछले वीडियो में हमने देखा था लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 1 दैट वाज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ लिविंग वर्ल्ड. नाउ whenever we talk about taxonomic aids, तो ये एक टूल है जिसमें certain sets of informations are stored about living organisms of plant and animals, जिसको यूज़ करके हम उस स्पीशीज़ को ईजिली आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई कर पाते हैं. Okay, so it is a technique or procedure that stores the information and which is used for identification and classification of different organisms. So there are different kinds of taxonomical tools like herbaria, botanical garden, museum, biodiversity parks, etc. The first one is herbarium. हर्बेरियम में क्या होता है, हम एक प्लांट स्पीशीज़ को कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करके एक हर्बेरियम शीट लेते हैं, उस पर प्रिजर्व करते हैं. ठीक है. सो इट इज़ लाइक दिस इज़ अ हर्बेरियम शीट हैविंग द साइज ऑफ 49 बाई 29 सेंटीमीटर एंड कुछ प्रोसेस स्टेप्स फॉलो करके हम इस मटेरियल को कलेक्ट करके माउंट करते हैं. सो स्टेप्स आर एज कलेक्शन, ड्राइंग इसलिए क्योंकि ये प्लांट स्पीशीज़ जो हम कलेक्ट कर रहे हैं इसमें मॉइस्चर हो सकता है जिसकी वजह से फर्दर माइक्रोबियल ग्रोथ होके ये प्लांट स्पीशीज़ डिके हो जाएगा. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसको पहले ड्राई करेंगे. देन प्रेसिंग इट लीड्स टू द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट एंड आफ्टर दैट पॉइजनिंग to avoid the microbial growth or microbes which are present over there or any sort of contamination. And then this material is mounted on the herbarium sheet, and after mounting this material is mounted on the herbarium sheet, and after mounting there are certain information that are mentioned at the right hand corner. उस information में आता है नेम ऑफ द कलेक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस, फिर उस प्लांट की फैमिली क्या थी, उसका कॉमन नेम, वर्नैकुलर नेम क्या था, बॉटनिकल नेम क्या था, वो सब इन्फॉर्मेशन हम मेंशन करते हैं. सो दिस इज़ इफेक्टिव टूल दैट इज़ यूज फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ जिसमें हम ड्राई स्पीशीज़ को प्रिजर्व करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बॉटनिकल गार्डन. So it is a garden where plant of different varieties are collected from different parts of the world. और इसमें हम living plant species को study करते हैं. We are studying living plant species and these plants are labeled. उसमें एक label board रहता है जिसमें उनका scientific name and common name mention किया जाता है. देर इज़ अ बॉटेनिकल गार्डन इन द कोलकाता. उसमें एक बैनियन ट्री है जो कि 255 ईयर्स ओल्ड. देन देर आर डिफरेंट गार्डन्स लाइक रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन. We can use it for research studies to get information of different plant species. So these plant species are preserved. They are living plant, like they are alive. We are not drying it and preserving. It was done in herbarium. The next one is museum. Okay, so इसमें क्या करते हैं हम, it is a place where collection of preserved plant and animal species are kept. मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम, plant and animal species को collect करके preserve करते हैं. जब preserve word आया मतलब हम उनको, वो dead हैं, alive नहीं है, they are not alive, so they are dead plant and animals which are preserved here. एंड उसको हम प्रिजर्व करते हैं फॉर्मेलिन या एक्वस सॉल्यूशन, फॉर्मल एल्डिहाइड में हम प्रिजर्व करते हैं एंड केप्ट इन अ ट्रांसपेरेंट जार्स like we have seen in laboratories, labs, in a transparent jars with a solution of formalin, formaldehyde. These animals or plant species are stored. Okay, so लार्जर एनिमल है, जैसे कोई लार्ज एनिमल है, बर्ड और मैमल्स और रेप्टाइल्स इट कुड बी, तो दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व जिससे कि हम उसकी बॉडी इजीली आइडेंटिफाई कर सके बाय सीइंग देयर बॉडी. ओके, दिस preservation takes place in wet and dried form. It can be wet in a solution or dried means like different kind of sample stuff, like जैसे हमने large animal को stuff किया, फिर dried में आ गया, shells को हम display करते हैं, skeletons of animals are displayed over there. फिर बहुत सारे insect को collect करके हम insect boxes में उनको display करते हैं, that insects are displayed. And
educational institute uses for the biodiversity of these plant and animal species. The next one we are going to study about is zoological park. Now here the wild animals are kept in captivity मतलब कैद में रखते हैं, ठीक है. So it is collection of wild animals and they are protected. केयर इज़ टेकन टू प्रोवाइड सिमिलर कंडीशन लाइक नेचुरल हैबिटेट. मतलब अगर एक फॉरेस्ट है, उधर एक कोई एनिमल है जो कि एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है, तो हमें उसको बचाना है, तो मैं दूसरी जगह उस एनिमल को ला रही हूँ. जो एनिमल है वो जंगल में ही रहेगा, तो उसको दूसरे जानवर खा सकते हैं, वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी. इससे अच्छा मैं एक दूसरे जगह पे उसको ला के वही सारे जो एनवायरनमेंट उधर था वही थोड़ा मिमिक करके मैं उसको वो एनवायरनमेंट दूँ और वहाँ पे उसको सेव करूँ. ओके, सो दिस वे लाइक आई कैन कंजर्व दैट एनिमल स्पीशीज़ एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्सिटू. मतलब एक उसका जो ओरिजिनल प्लेस था उधर मैं उसको कंजर्व नहीं कर रही हूँ, उसको नहीं बचा रही हूँ, मैं उसको दूसरी जगह लेके गई. दैट इज़ अ zoological park. We go in zoological parks to study the animal behavior and food habits. Okay. सो दिस वॉज ऑफ zoological पार्क, जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करते हैं, लाइक उनकी देखभाल करते हैं, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडी पर्पस. नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ की. अब दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इसमें क्या होता है कि हम पहले एक स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं, लीड. और ये स्टेटमेंट का दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहता है, उसको हम कपलेट बोलते हैं. कपलेट मीन्स दे आर टू, इट कैन बी येस और नो. ओके, सो दे आर कपलेट. ये स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं एंड ये लीड का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहता है विच इज़ नोन एज कपलेट. इट कैन बी येस और नो. This couplet is yes or no. It is analytical in nature, means it is used for analysis on the basis of similarities or dissimilarities among the plant or animal species. We can classify them and identify them. Here the example is of, like, I have considered 4 organisms that are duck, hen, lizard and snake. पहले मैं एक statement consider करूँगी, do they have feathers. ये statement को मैंने क्या बोला, lead बोला, lead. ये लीड का दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहेंगे, दैट इज़ नोन एज कपलेट. ओके, सो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है, येस और नो. अब किसके पास फेदर्स है वो येस में चले जाएंगे, डक एंड हेन, एंड जिसके पास नहीं है वो नीचे आ जाएंगे, लिजार्ड एंड स्नेक. ओके, फिर मैं एक स्टेटमेंट दूंगी तो वो लीड हो जाएगा. फॉर डक एंड हेन आई कैन गिव डू दे स्विम, तो ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकूँगी ना, मैं उनको क्लासीफाई कर सकूँगी और ईजी हो जाएगा मेरे लिए. तो येस और नो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो जाएगा उसमें डक आ जाएगा येस में एंड हेन इज़ नो because it cannot swim. So I can easily classify duck and hen, and similarly it goes for this lizard and snake. Do they have legs? So lizard, I can classify lizard and snake on the basis of this lead question, that is lead statement, that is do they have legs. So this way we have studied about taxonomical aids, different types of taxonomical aid in today's video. Hope so it was helpful to you. Hit the like button if this video was really useful to you. Please subscribe to my channel for more new videos. Thank you.